So let's resume our topic, that is Bode plot. In the last class, we have studied about the Bode plot. What is Bode plot? Why we are drawing? Okay, what is corner frequency? So everything is clear in the last class. So let's make some more Bode plot. Okay, so draw the Bode plot for this transfer function. Draw the Bode plot for this open loop transfer function. Draw the Bode plot for this transfer function. Quickly draw it. Okay, so let's draw. So write down the first corner frequency in ascending order. I've told you in the last class, write down the corner frequency in the ascending order. So due to this 0, what is the corner frequency? 4. Due to this pole 20 and due to this pole 100. मेरा 4 किसकी वजह से है? 2 जीरो की वजह से. 20 किसकी वजह से है? 3 पोल की वजह से. एंड 100 किसकी वजह से है? 100 किसकी वजह से है मेरा? 2 जीरो की वजह से. So first, let's take first case when omega lies between 0 say 4. So what is GSHS? GSHS is 100 by S square. Now which one will dominate, 1 or 0.25S? Okay, so its corner frequency is 4 and the frequency is less than 4, so definitely 1 will dominate. Here also corner frequency less than 10, 1 will dominate, and here, so this comes out to be 100 by S square. So what is the magnitude here? Magnitude here is 100 by omega square. So what is the magnitude in dB? Magnitude in dB equals to 20 log 100 minus 20 log omega square. So what is the value of 20 log 100? 20 log 100 is 40 minus 40 log omega. Compare it with y barabar mx plus c. So what is the slope? Slope is minus 40 dB per decade. So starting slope, we have calculated the starting slope is minus 40 dB per decade. Okay, so now let's draw the Bode plot. Okay, so write down mark the corner frequency first. So first corner frequency is 4 and 4 is because of 2 zeros. Next corner frequency is 20. 20 is because of 3 pole. Next corner frequency is because of 2 zero. 2 zero की वजह से कितनी है? 100. Okay, so this one is 100. So let's start with omega बराबर 0.1. So what is the magnitude at omega बराबर 0.1? Omega बराबर 0.1 यहाँ put करो. तो log 0.1 is minus 1. So this comes out to be 40 plus 40. So that comes out to be 80 dB. So it start with 80 dB. And slope is minus 40 dB per decade. And ये slope कब तक रहेगी? 4 तक. So we have to calculate the magnitude at 4. So how you are going to calculate the magnitude at 4? So apply m2 बराबर slope into log omega 2 by omega 1. m1 is 80 dB, slope is minus 40 dB per decade log. We have to calculate the magnitude at where? 4 radian per second. We have to calculate the magnitude at 4 radian per second. So put omega 2 equals to 4. So put omega 2 equals to 4. Omega 2 equals to 4 and omega 1 is 0.1. So this comes out to be 80 minus 40 log 40. Now quickly tell me the value of 80 minus 40 log 40. So this comes out to be 80 minus 40 log 40. So this comes out to be 16 dB. Okay, so here I am getting what? So this will come down up to 16 dB. At 4 the magnitude is 16 dB. And now 2 0 will occur at here. 2 0 is at here. तो 1 0 की वजह से स्लोप कितनी होती है? प्लस 20 dB पर डेकेड. तो 2 0 की वजह से कितनी हो जाएगी? प्लस 40 dB पर डेकेड. माइनस 40 में प्लस 40 ऐड करोगे, then what will come? 0 dB per decade. So it will become constant. So this is 0 dB per decade. Next, 3 pole occurring at here. 3 pole means slope should be minus 20 minus 20 minus 60. 3 पोल की वजह से कितनी होगी? minus 60. तो slope should be
minus 60 dB per decade. Now we have to find out the magnitude at 100 क्योंकि ये स्लोप कहाँ तक रहेगी 100 तक 100 के बाद अगेन चेंज होगी so we have to calculate the magnitude at 100 so what is m2 बराबर m1 is 20 पे मैग्नीट्यूड कितना है 16 स्लोप है 60 log 100 by 20 so this comes out to be 16 minus 60 log 5. So what is the value of 16 minus 60 log 5? Quickly tell me. So this comes out to be minus 26 dB. So here it will go up to minus 26 dB. Okay, and then यहाँ पर कितने जीरो आ गए 2 जीरो आ गए 2 जीरो की वजह से स्लोप कितनी होगी +40 माइनस 60 में +40 जोड़ोगे सो दिस कम्स आउट टू बी minus 20 dB per decade. So what is the omega GC here? Omega GC is this frequency. Can you calculate this frequency? So quickly calculate the value of omega GC. Quickly calculate the value of omega GC. So how you are going to calculate the omega GC? At omega बराबर omega GC. At omega बराबर omega GC. Magnitude is what? 0 dB. And at omega बराबर 20. What is magnitude? Magnitude is 16 dB. So this is omega 1 m1, this is omega 2 and m2 and apply m2 बराबर same formula m1 plus slope into log omega 2 by omega 1. Okay, so what is m2 here? M2 is 0, m1 is 16, slope is minus 60 and log what is omega 2? Omega 2 is omega GC and omega 1 is 20. So from here you are going to calculate the value of omega GC. Okay, so quickly calculate the value of omega GC and tell me the value of omega GC. What omega GC will come. Okay, so note it down quickly. Start from here. स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है बाकी जो आता जाए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाओ पोल है तो ऐड कितना करोगे -20 -40 -60 एंड इफ इट इज 0 देन यू आर गोइंग टू ऐड +20 +40 +60 +80 dB. Okay, so quickly note it down. Okay, so write down next problem. Draw the Bode magnitude plot of the given transfer function. Tan s square 1 plus 0.04 s, then 1 plus 0.1 s, here 1 plus s का 0.025 s का whole square, 1 plus 0.01 s, 1 plus 0.05 s, 1 plus 0.025 s whole square. Now quickly draw the Bode plot of this. Quickly. Okay, so let's start. So write down the corner frequency in the ascending order. So first corner frequency is 1 upon 0.04 की वजह से क्या आएगा 25. इसकी वजह से कितना आएगा 1 upon 0.025 की वजह से कितना आएगा बताओ 1 upon 0.0525 कितना होगा 40 आ जाएगा. इसकी वजह से 1 upon 0.01 की वजह से कितना आएगा 0.01 की वजह से कितना आएगा 100 और 0.05 की वजह से 20. तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 10. 10 किसकी वजह से है 0 की वजह से. उसके बाद मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्या होगी 20. 20 मेरी किसकी वजह से है पोल की वजह से है 10 20 एंड देन 25 अगेन 0 की वजह से है एंड देन फॉर दिस दो पोल 40 एंड देन 100. 100 भी किसकी वजह से है पोल की वजह से है. ओके, सो दीज आर द 1 2 3 4 5 corner frequency. So 10 20 25 40 and 100. So this you can write above 10 20 25 40 and 100. Okay, so here what it is it is 1 plus 0.01 s. 40 किसकी वजह से है दो पोल की वजह से. 100 किसकी वजह से है एक पोल की वजह से. Okay, 10 20 25 40 and 100. Okay, so now let's draw the Bode plot. So first, if omega lies between 0 and 10, what is GSHS? tan s square. क्योंकि सारे क्या क्या डोमिनेट करेंगे 1 1 1 1 1 क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से क्या है कम. तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर. व्हाट इज मैग्नीट्यूड इन डीबी
20 log 10 plus 40 log omega. 20 log 10 plus 40 log omega. So this comes out to be 20 plus 40 log omega. So y equals to mx plus c. So what is m? M is plus 40 dB per decade and starting point ओमेगा बराबर 0.1 पे मैग्नीट्यूड कितना होगा? if I put 0.1 तो 20 minus 40 log 0.1 is -1, so 20 minus 40 is minus 20 dB. So our Bode plot will start with minus 20 dB. Okay, so now let's draw the Bode plot. Okay, so we are starting with 0.1. 0.1 पे what is magnitude? Magnitude is minus 20 dB. First corner frequency हमारी कितनी है? First corner frequency is our 10 and 10 is because of 0. So first corner frequency मेरी कहाँ आएगी? 10. So 0.1 पे हमें यहाँ इसकी स्लोप पता है. स्लोप कितनी है? What is slope? Plus 40 dB per decade. So can you find out the magnitude at 10? 0.1 पे मैग्नीट्यूड पता है, स्लोप पता है और 10 पे निकालना है. तो व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई? यू आर गोइंग टू अप्लाई m2 बराबर m1 प्लस स्लोप इनटू log ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 minus 20 minus 40 log 10 by 0.1. Okay, so this comes out to be what? 60 dB. So this comes out to be 60 dB. Okay, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया? 60 dB. अब जीरो आ गया. जीरो की वजह से कितना हो जाएगा? जीरो की वजह से स्लोप प्लस 20 और ऐड हो जाएगी. तो 60 प्लस 20 40 प्लस 20 कितना हो गया? 60. अब इसके बाद मेरी स्लोप कितनी हो जाएगी? प्लस 60 dB पर डिकेड. और ये फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट वाली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरी कौन सी है? पहले अरेंज कर लेते हैं. नेक्स्ट वाली है 20 पोल की वजह से एंड देन 25 40 100 25 एंड देन 25 जीरो की वजह से 40 पोल की वजह से है. 25 is due to 0 and then 40 and then 100. तो हमें कहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है? 20 पे. सो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे. m2 बराबर m1 प्लस स्लोप इनटू log ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1. 20 पे हमें मैग्नीट्यूड पता है. 10 पे हमें पता है कितना है? 10 पे 60 dB and we have to find out at 20. So m2 बराबर m1 plus slope into log omega 2 by omega 1. So this is going to become 78 dB. Okay, and next पोल आ गया तो वापस से स्लोप कितनी हो जाएगी? प्लस 40 dB पर डिकेड. पोल की वजह से कितनी होती है? -20. 60 -20 कितना आ जाएगा? 40. अब 25 पे मैग्नीट्यूड निकालना है तो वही से फॉर्मूला लगाएंगे. m2 बराबर m1 प्लस स्लोप इनटू log ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1. 20 पे कितना है? 78 प्लस log 78 plus 40 log 25 by 20 and you are going to get the value of the magnitude at omega बराबर 25. So how much value you are going to get? So you are going to get 82 dB. And next जीरो आ गया. जीरो आ गया तो वापस से क्या हो गया हमारी? जीरो आ गया तो वापस से हमारी स्लोप कितनी हो गई? प्लस 60 dB पर डिकेड. तो यहाँ पर मेरा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे. m2 बराबर m1 प्लस m2 बराबर m1 प्लस स्लोप इनटू log ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1. सो दिस आई एम गोइंग टू गेट 94 dB. अब यहाँ पर क्या आया है? मेरे दो पोल आए हैं. दो पोल आए हैं तो 60 में से 40 गया. दो पोल आए हैं तो एक पोल की वजह से -20, दो पोल की वजह से -40. सो दिस विल गोइंग टू बिकम व्हाट? प्लस 20 dB पर डिकेड. 60 में से 40 गया, कितना बचा? प्लस 20 dB पर डिकेड. और 100 के पे क्या आ गया? एक पोल आ गया. पोल आ गया तो 20 -20 क्या हो गया? सो दिस शुड बी कांस्टेंट. सो दिस इज 0 dB पर डिकेड. 100 पे भी आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज कम्स आउट टू बी 102 dB. सेम फॉर्मूला m2 बराबर m1 प्लस स्लोप इनटू log ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1. जस्ट वन फॉर्मूला and if you find out the starting point then your Bode plot is going to be made quickly. Okay, so note it down quickly. Okay, write down next problem. Draw the Bode plot. GSHS बराबर k into 1 plus s upon 1 plus 0.1 s. Draw Bode k बराबर 10 के लिए बनाओ और k बराबर 100 के लिए बनाओ.
ड्रॉ इट्स बॉडी प्लॉट, उसी के नीचे बनाना। ठीक है, एक के बराबर किसके लिए बनाओ, 10 के लिए, और एक के बराबर 100 के लिए। क्विकली, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो first I will draw for k equals to 10. Okay, so what is GSHS? तो what is its corner frequency? इसकी वजह से 1 है, 10 है एंड देन 100 है। 1 0 की वजह से, 10 पोल की वजह से, 100 पोल की वजह से। तो अगर ओमेगा मेरा 0 और 1 के बीच में है तो what is GSHS? Only 10 will come. Only 10 will come. These 1, 1, 1 will dominate because the corner frequency is less than 1. So what is the magnitude? Magnitude here it is 10. So what is magnitude in dB? So this comes out to be 20 log 10. So this comes out to be 20 dB. And magnitude constant है तो slope कितनी होगी? 0 dB per decade. For constant slope, for constant magnitude, the slope is, for constant magnitude, the slope is 0 dB per decade. Okay, so let's draw the magnitude, Bode magnitude plot for k barabar 10. And here only I am going to draw for k equal to 100. This is for k equal to 100. This is for k equal to 10. So what I am getting, what is the corner frequency? 1, 10 and 100. 1, 10 and then 100. यहाँ पर भी 1, 10 and then 100. Corner frequency तीनों की क्या होंगी? Same. Only the value of gain is changing. So up to 1, what is the magnitude? 20 log 10. So this should be 20 dB. अब 0 आ गया तो क्या हो जाएगा ये? प्लस 20 dB पर डिकेड, क्योंकि 0 की वजह से क्या होता है? बोलो, 0 की वजह से क्या होता है? प्लस 20 dB पर डिकेड। तो 0 में प्लस 20 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 20 dB पर डिकेड। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एट हेयर? वही सेम फॉर्मूला लगा दो, m2 बराबर m1 प्लस स्लोप इनटू log ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। 1 पे मैग्नीट्यूड पता है 20 dB, 10 पे आपको निकालना है। सो 10 पे कितना आ जाएगा? 10 पे आ जाएगा हमारा 40 dB। नेक्स्ट, प्लस 20 में अभी ये पोल आ गया तो ये क्या हो जाएगा? पोल की वजह से माइनस 20 होती है, तो 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 0 dB पर डिकेड। एंड नेक्स्ट इज अवर दिस what? Minus 20 dB per decade. So this is our what? Omega GC. Can you calculate omega GC? At 100, what is the magnitude? At 100, the magnitude is 40 dB. At omega GC, the magnitude is what? 0 dB. So apply omega 2 बराबर m2 बराबर m1 plus slope into log omega 2 by omega 1, and you are going to find the value of the omega GC easily. So कितनी वैल्यू आएगी ओमेगा जीसी की? ओमेगा जीसी comes out to be here, फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4। एंड इफ आई पुट k इक्वल टू 100, सो स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 100, 20 log 100 इज 40 dB, एंड देन प्लस 20 dB पर डिकेड। यहाँ कितना आ जाएगा? शुड बी 60 dB, एंड देन कांस्टेंट, एंड अगेन minus 20 dB पर। सो दिस इज अवर ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी क्या होता है? जहाँ मैग्नीट्यूड 1 और डीबी में मैग्नीट्यूड कितना हो? 0 dB। सो दिस इज अवर ओमेगा जीसी। सो व्हाट इज द ओमेगा जीसी यू आर गेटिंग हियर? ओमेगा जीसी यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 5। निकाल सकते हो भाई, m2 बराबर m1 प्लस स्लोप इनटू log ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। अगर हमने गेन के बढ़ाया तो हमारा स्लोप कोई भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, बस क्या चेंज हो गया? ये जहां 20 था वो यहाँ 40 हो गया, जहां यहाँ 40 था वहां यहाँ शिफ्ट 60 हो गया। तो ये क्या हो गया? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ऊपर की तरफ शिफ्ट होने से ये कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट साइड में। तो ओमेगा जीसी मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ के का गेन बढ़ाते हैं, वैल्यू ऑफ के अपन बढ़ाते हैं, तो ओमेगा जीसी की वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाएगी। लेकिन के की वैल्यू बढ़ाने से क्या फेज प्लॉट में कुछ भी फर्क पड़ेगा? फेस प्लॉट क्या के पे डिपेंड करता है? के चाहे 10 हो चाहे 100 हो, दोनों ही केस में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। 10 और 100 दोनों का ही एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो फेस प्लॉट पे मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज द वैल्यू ऑफ द गेन इंक्रीजेस, सो व्हाट ओमेगा जी से इंक्रीजेस, बट ओमेगा पीसी डज नॉट चेंज बिकॉज द फेस प्लॉट डज नॉट चेंज बाय द वेरिएशन ऑफ द गेन के। Okay, so note it down quickly. So write down a point: as the value of gain k increases, as the value of gain k is increases,
as the value of gain k increases, the value of omega gc increases. The value of omega gc increases, and and no effect of gain k, and no effect of gain k on omega pc, on omega pc, because because phase plot, because phase plot remains same, because phase plot remains same. Okay, phase plot हमारा क्या रहता है, same. Now the question in GATE exam, which type of question come in the GATE exam? In the GATE examination generally उल्टा question आता है, opposite question आता है. Till now what I have teach you, I have given you the, what I have provided you the transfer function, and you are going to draw its magnitude plot. Okay, and you are drawing its magnitude plot. But in the GATE examination opposite question come. What? They are going to give you the board plot, they are going to give you the board plot, and you have to find the transfer function. So this type of question comes in the GATE examination. So how to solve that question? So let's start one problem. Okay, so this is the Bode plot. Bode magnitude plot is given 20 log magnitude of GH versus omega. So this slope is minus 20 dB, minus 40 dB, and here minus 20 dB, and again it is minus 40 dB per decade. Okay, and this frequency is, these all three frequency are given to us. This is 1, 2, and 10. And this frequency we have also given. What this frequency is? 20. Find GSHS. Quickly find out the GSHS. Can you find it out? Quickly find it out. So let's so at this frequency the slope is changing from minus 20 to minus 40. So when slope is changing from minus 20 to minus 40, हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? माइनस 20. हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? माइनस 20. और माइनस 20 की वजह से स्लोप, माइनस 20 की वजह से हमारा स्लोप किसकी वजह से होता है? सो डेफिनेटली इट इज अ पोल. माइनस 20 से माइनस 40 जाएंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पोल. तभी ये क्या आएगा? माइनस 40. अब माइनस 40 में कितना जोड़ें कि माइनस 20 आ जाए? प्लस 20 जोड़ें. सो प्लस 20 किसकी वजह से होता है? जीरो से. अब माइनस 20 से वापस क्या हो गई? माइनस 40 हो गई. तो हम इसमें कितना जोड़े हैं? एक पोल. Okay, so what is the GSHS? So what is the starting slope? Starting slope is minus 20. So definitely one pole is at origin. क्योंकि ये starting जो slope आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? origin की वजह से पोल है, बता चुका हूं मैं आपको. और अगर ये कांस्टेंट होती तो सिर्फ क्या आ जाता? के आ जाता. तो के बाई एस दूसरी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी मेरी किसकी वजह से? पोल की वजह से. तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस एस, और ये फिर 2 जीरो की वजह से है. 1 प्लस एस बाई 2, and then 10 पोल की वजह से है 1 plus s by 10. Now we have to find out the value of the k. So how you are going to find out the value of k? So for omega greater than 10, so for omega greater than 10, what is GSHS? K by s. What will dominate, 1 or s by 2 if frequency is greater than 10? What will dominate if frequency is greater than 10? 1 और s by 2. इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2. तो फ्रीक्वेंसी 2 से बढ़ी है, 10 2 से बड़ा ही होता है, तो क्या डोमिनेट करेगा? s by 2. And here 1 या s 1 या s by 10, s by 10. So this comes out to be 5k by s square. Okay, so what is the magnitude here? ओमेगा greater than 10 के लिए मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 5k by ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा बराबर 20 पे मेरा मैग्नीट्यूड डीवी में कितना है? 0 dB. ओमेगा बराबर 20 पे व्हाट इज अवर मैग्नीट्यूड इन डीवी? दैट इज 0 dB. सो नॉर्मली मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. कब? ओमेगा बराबर 20 पे. ओके, ओमेगा बराबर 20 पे मैग्नीट्यूड कितना है? 1. सो ओमेगा ग्रेटर 20 क्या है? 10 से बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड कितना है? 5k बाई ओमेगा स्क्वायर. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. 5k by 20 square equals to 1. So here k I am going to get
400/5, 80. So now put K80 here and you are going to get your transfer function. 80 into 1 plus s by 2 upon s into 1 plus s into 1 plus s by 10. ओके, तो बस हमें जीएसएचएस निकालना है। जिस भी रेंज का दिया गया 20 कब आएगा, 20 पे मैग्नीट्यूड दिया गया था अपन को, तो हमें ओमेगा ग्रेटर देन 10 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन। ओमेगा ग्रेटर देन 10 के लिए ट्रांसफर फंक्शन निकाल दो, उस पर मैग्नीट्यूड निकाल दो और ओमेगा बराबर 20 पे मैग्नीट्यूड क्या पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा बराबर 20 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। सो यू आर गोइंग टू गेट योर वैल्यू k. So what k you are getting, you are getting k equals to 80. Okay, so quickly note it down. Okay, so write down next problem. Find out the transfer function for the given Bode plot, and this frequency we have given to us is 200. Slope is -20, -20, and this one is +20. This one is 0 dB per decade, and this one is also. So quickly find out the transfer function GSHS. Quickly find out. Same procedure, same method. So here 0 से स्लोप क्या हो रही है, -20 dB। 0 में कितना जोड़ें कि -20 आ जाए, -20 जोड़ना पड़ेगा। सो डेफिनेटली देयर इज अ पोल। -20 से वापस क्या हो गई 0, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +20। +20 से -20 हो गया, कितना जोड़ना पड़ेगा, -20। -20 से +20 हो गई, कितना जोड़ना पड़ेगा, -20 में कितना जोड़ें कि +20 आ जाए, डेफिनेटली +40। सो +40 कितनी पोल की वजह से, कितने जीरो की वजह से होती है, 2। एंड देन 20 से क्या हो गई 0, सो डेफिनेटली हियर इट इज पोल। So what is GSHS? Starting slope is constant, so only K is there. First corner frequency is due to pole, 1 plus S. Second corner frequency is due to 0, 1 plus S by 10. Third is due to pole. So this is time constant. Time constant is inverse. So 1 plus ST के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो T क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। एंड देन 2 0, and then so this is the transfer function we are getting. Now we have to find out the value of k. So how you are going to find out the value of the k? So in the question it is given, at omega barabar 200, what is magnitude in dB is 0 dB. So magnitude is 1 at omega barabar 200. मैग्नीट्यूड हमारा कितना है, 1 है एट ओमेगा बराबर 200। तो 200 किसके बीच में लाई कर रहा है, 100 और 1000 के बीच में। सो इफ ओमेगा लाइज बिटवीन 100 टू 1000, तो व्हाट इज जीएसएचएस, फॉर दिस 1 प्लस एस एस की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। हम फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हैं, 100 से ज्यादा, तो 100 ऑब्वियसली 1 से ज्यादा है, तो इसका क्या डोमिनेट करेगा, एस। यहाँ कितना आएगा, 1 या एस बाई 10। इसकी ये एस बाई 10 टर्म कब डोमिनेट करेगी, जब क्या हो, फ्रीक्वेंसी 10 से ज्यादा। तो 100 से ज्यादा है तो 10 से ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, तो यहाँ कितना आएगा, एस बाई 10। एंड हेयर 1 प्लस एस बाई 100, इसका ये कब डोमिनेट करेगा, जब फ्रीक्वेंसी 100 से ज्यादा हो। तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी 100 से ज्यादा है, तो एस बाई 100। यहाँ कितनी है फ्रीक्वेंसी, 1000। तो अभी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1000 से कम, सो डेफिनेटली 1 डोमिनेट करेगा। यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 1। So this SS got cancel out. So what I'm getting 10 10 cancel out, 10k by S. So what is the magnitude we are getting? We are getting the magnitude as 10k by omega. We are getting the magnitude 10k by omega. So now at omega barabar 200, what is the magnitude? Magnitude is 1. So we are going to find out from here. At omega barabar 200, what is magnitude? Magnitude is 1. So what is magnitude here? Magnitude here is 10k by omega. 10k by omega at omega barabar 200. So this should be 1. So k should be 200 by 10. So k should be 20. Now put the value of k here and you are going to get your transfer function. 20 into 1 plus 0.1s, 1 plus 0.001s upon 1 plus s, 1 plus 0.01s, 1 plus 0.0002s. Okay, so quickly note down this.
Okay, so now I am going to give you one more problem, so try to solve it out. Find GSHS. Okay, so quickly find out the value of GSHS. This is versus omega. Okay, so now here the corner frequency is this frequency. This is corner frequency omega A, this is corner frequency omega B. And we don't know the value of omega A and omega B. So how you are going to calculate the omega A at omega 1 barabar 4? What is magnitude is 0 dB. Okay, and at omega 2 equal to omega A, what is the magnitude? M2 omega A पे magnitude कितना है? Minus 40 dB. Now apply formula M2 equals to M1 plus slope into log omega 2 by omega 1. M2 बराबर M1 plus slope into log omega 2 by omega 1. So this is M2 is minus 40. What is M1? M1 is 0. Slope is minus 20. Log omega 2 is omega A by 4. So from here you are going to, so this got cancel out 22. This is base 10. So omega A by 4 बराबर 10 की power 2. This is 100. So omega A becomes 400. So this frequency I am going to get what? 400. Similarly, you are going to find out the value of omega B. So at omega 1 barabar omega B, what is the magnitude? M1 barabar minus 40 dB. Omega 2 barabar 40,000. What is the magnitude? Magnitude is our what? Omega M2 omega 2 equal to 40,000. M2 is 0 dB. Okay, so apply this. M2 barabar M2 is 0, M1 is minus 40, slope is plus 40, log omega 2 by omega 1. So this comes out to be 40,000 upon omega 40,000 upon, so this comes out to be 40,000 upon omega B. Okay, so solve it and find out the value of omega B quickly. Find out the value of omega B. So here it is omega B. Find out the value of omega B. So this comes out to be 40 equal to 40. So this comes out to be 1 barabar log 40,000 by omega B. So omega B comes out to be 4,000. So these two frequency I have calculated omega A and omega B. So definitely minus 20 से slope क्या हो गई यहाँ पर 0 dB per decade. This is constant slope. So definitely here it is a 0 and 0 से plus 40 हो गई. 0 से plus 40 हो गई तो definitely there is 20. Okay. So what is GSHS here? GSHS here is K what? K by starting slope is minus 20. So K by S 1 plus S by इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी आई 400 S by 400 and 1 plus S by 4000 का whole square. Why whole square? Because there is 20 are there. So now we have to find out the value of K. So K आप कहीं से भी find out कर लो इस रीजन से 4 पे 40,000 पे कहीं पर भी find out कर लो आपका आंसर आ जाएगा. हमें पता है ओमेगा और ओमेगा के बीच में मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है माइनस 40 dB कांस्टेंट है तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो. सो क्विकली नोट आउट डाउन दिस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. Quickly note it down this and find the value of K. Okay. So now find out the value of K. So omega lies between 400 to 4,000. What is GSHS? 400 से ज्यादा है तो कौन डोमिनेट करेगा ये S by 400 और यहाँ 4000 से कम है ये 1 डोमिनेट करेगा. So this comes out to be K by 400. So what is the magnitude? Magnitude is K by 400. And what is the magnitude in between? Magnitude in dB is what? Minus 40 dB. Minus 40 dB. So now can anybody tell me what is the magnitude in original form? In original form you have to convert in 20 log magnitude. So what is the value of magnitude? Magnitude is minus 40 by 2. What? Minus 2. So this comes out to be m barabar 0.2
0.01, m कितना आ जाएगा 0.01. सो राइट इट एज m बराबर 0.01, दैट इज 1/100. सो k वी आर गेटिंग एट 4. k हमारा कितना आ गया 4. ओके, तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई 4. कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे मैग्नीट्यूड dB में निकाल लो. 20 log k माइनस 20 log 400 इक्वल टू माइनस 40 dB, ऐसे निकाल लो. या मैग्नीट्यूड इन dB माइनस 40 dB है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 20 log m. तो यहाँ माइनस 40/20 कितना हो जाएगा -2. तो m की वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर -2 इज 0.01. डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो 0.01 एंड यू आर गेटिंग k इक्वल्स टू 4. सो क्विकली नोट इट डाउन. ओके, so now next topic is how we are going to calculate gain margin and phase margin using Bode plot. Okay, so suppose this is our 0 dB line and this is our minus 180 degree line and this is our Bode plot of any system. So जहां पर magnitude 0 dB आ जाए, so this frequency is called omega gc. Okay, next we are drawing the phase plot and suppose this is our phase plot. ये किसी का क्या है फेस प्लॉट. तो फेस प्लॉट जहां पर -180 डिग्री लाइन को कट करेगा दैट इज कॉल्ड अवर ओमेगा पीसी. सो दैट इज कॉल्ड अवर ओमेगा पीसी. ओके, सो दिस इज अवर ओमेगा जीसी एंड दिस इज अवर ओमेगा पीसी. हम मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट जस्ट एक दूसरे के नीचे बनाते हैं. दिस इज अवर मैग्नीट्यूड इन डीवी वर्सेस ओमेगा एंड दिस इज अवर फाई वर्सेस ओमेगा and this is minus 180 degree line. Okay, so now calculate. This is omega gc. So what is the phase at omega gc? Phase क्या होता है omega gc पे? What is it called? It is called as phi gc. तो phi gc की वैल्यू हमारी ये एंगल होगी. ये एंगल मेरा क्या है -180 से ऊपर है. -180 से ये क्या है ऊपर है. तो -180 से ऊपर क्या होगा -170 -130 -120. उसमें यदि हम 180 ऐड करेंगे तो फेज मार्जिन हमारा क्या आएगा ग्रेटर देन 0 डिग्री आएगा कि नहीं बोलो. क्योंकि ये 5GC कितना है, ये वाला मेरा -180 से ऊपर है तो डेफिनेटली वैल्यू क्या होगी -180 से ज्यादा होगा. तो उसमें हम 180 ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी कि नहीं. तो फेज मार्जिन ग्रेटर देन 0 डिग्री. ओमेगा पीसी, दिस इज ओमेगा पीसी. ओमेगा पीसी पे हमारा मैग्नीट्यूड ये है मैग्नीट्यूड इन डीबी दैट इज नेगेटिव. ओके, सो व्हाट इज गेन मार्जिन? गेन मार्जिन इज 1 upon magnitude at omega बराबर omega pc. So what is gain margin in dB? -20 log magnitude at omega बराबर omega pc. तो बस ये नेगेटिव आ रहा है, इसमें माइनस का और मल्टीप्लाई करा दो तो गेन मार्जिन आ जाएगा. तो अगर मैग्नीट्यूड इन डीबी नेगेटिव है तो डेफिनेटली गेन मार्जिन शुड बी ग्रेटर देन 0 dB. If gain margin greater than 0 dB, phase margin greater than 0 degree, system is said to be stable. So this is the procedure how we are going to calculate the gain margin and phase margin. ओमेगा जीसी के जस्ट नीचे जो फेज होगा उस पे हम फेज निकाल लेंगे, उसमें कितना ऐड कर देंगे 180. तो क्या जाएगा हमारा फेज मार्जिन. क्लियर है. और ओमेगा पीसी पे जो मैग्नीट्यूड आया होगा सपोज दिस इज -20 dB, सो गेन मार्जिन शुड बी +20 dB. Okay, why? Because gain margin is -20 log m. जो भी ये this is what? This is magnitude in dB. This is minus magnitude in dB. Okay, so जो भी magnitude in dB आया है उसमें extra minus sign लगा दोगे, so that will be our what? Gain margin. Okay, so now if we increase the value of k, अगर हम सिस्टम में k की वैल्यू बढ़ाएं तो क्या हमारा फेस प्लॉट पे कोई चेंज पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. सिर्फ क्या होगा ये गेन प्लॉट क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा. ओके, नाउ सपोज ये यहां कट कर रहा है. नाउ अवर बोथ ओमेगा पीसी एंड ओमेगा जीसी आर इक्वल. बोथ आर इक्वल. सो दिस इज अवर ओमेगा पीसी एंड दिस इज अवर ओमेगा जीसी. ओमेगा पीसी पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0 dB. सो गेन मार्जिन हमारा इस केस में कितना आ जाएगा 0 dB. फेज मार्जिन कितना आएगा ओमेगा जीसी पे एंगल कितना है ये -180. तो फेज मार्जिन कितना आ गया. सिस्टम क्या हो गया स्टेबल. और ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा शिफ्ट होगा ऊपर आगे चला जाएगा. एंड नाउ दिस इज अवर व्हाट ओमेगा जीसी.
एंड दिस इज अवर ओमेगा पीसी। तो अब मेरा ओमेगा जीसी पे फेज कितना आएगा, ये फेज इज -180 से क्या हो गया और कम, सपोज -200 हो गया, -210 हो गया, तो मेरा फेज मार्जिन क्या आएगा इस केस में, लेस देन 0 डिग्री। और गेन मार्जिन ओमेगा पीसी पे मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड इन डीबी एंड दिस इज पॉजिटिव, सो गेन मार्जिन इज लेस देन 0 dB. So system is said to be unstable. So for a minimum phase system, if you are increasing the value of K, then the value of omega GC continuously increases, but the value of omega PC will not change. Omega PC वहीं का वहीं है, but omega GC पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ हो गया। ओमेगा जीसी हमारा क्या हो रहा है, चेंज, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो जैसे जैसे के बढ़ाएंगे, जब ओमेगा, अब यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, अगर ओमेगा जीसी मेरा ओमेगा पीसी से बड़ा है तो सिस्टम क्या है, स्टेबल। ओमेगा पीसी और ओमेगा जीसी सेम है तो सिस्टम क्या है, मार्जिनल स्टेबल। और अगर ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी से बड़ा हो गया तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दीज कंक्लूजन्स फॉर अ मिनिमम फेज सिस्टम। ओके, सो नोटेड डाउन दिस। Okay, so next, what is the conclusion? So minimum phase system conclusion. Minimum phase system conclusion, because gain margin and phase margin concept of stability is valid only for the minimum phase system. So these conclusions that I've already told you is valid only for the minimum phase system. So if omega PC is greater than omega GC, it means gain margin greater than 0 dB and phase margin greater than 0 degree, and system is said to be stable. If omega PC equals to omega GC, then what is gain margin equal to 0 dB and phase margin equal to 0 degree, then system is said to be marginally stable. And if omega PC is less than omega GC, then what, gain margin less than 0 dB and phase margin less than 0 degree, system is said to be unstable. Okay, so note it down quickly. So next is our quadratic factors. First I am going to take quadratic poles. First I am going to take quadratic poles. Okay, so what is quadratic pole? For quadratic pole, GSHS बराबर ओमेगा n square s square plus, so what is its magnitude? So first I am going to find out g of j omega, h of j omega. So this comes out to be omega n square upon so here what we are taking the assumption, number one, here corner frequency is what, omega n. कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा एन। हम क्या लेते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम लेंगे, अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम है ओमेगा एन, तो जी ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा लेस देन क्या है, ओमेगा एन। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एन से कम है, तो ओमेगा स्क्वायर और कम हो जाएगा किससे, ओमेगा एन स्क्वायर से। तो हम ओमेगा एन स्क्वायर के कंपैरिजन में इन दोनों टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। सो व्हाट आई एम गेटिंग ओमेगा एन स्क्वायर बाई ओमेगा एन स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 1। मतलब हमारा कौन डोमिनेट कर रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन से कम है तो हमारा ये डोमिनेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा एन से कम है तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ओके, सो मैग्नीट्यूड इज 1, सो मैग्नीट्यूड इज 1, सो एंड मैग्नीट्यूड इन डीवी इक्वल्स टू 0 dB, so slope equals to 0 dB पर टिकट। हमारी स्लोप कितनी आ गई, 0 dB पर टिकट। ओके, क्लियर है ये। नेक्स्ट इज एवर इफ ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा एन, व्हाट, अगर मेरा ओमेगा किससे बड़ा हो जाए, ओमेगा एन से, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अगर ओमेगा ओमेगा एन से बड़ा हो गया तो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू डोमिनेट करेगी। सो व्हाट इज जी ऑफ जी ओमेगा, एच ऑफ जी ओमेगा। सो हेयर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ओमेगा स्क्वायर वैल्यू ओमेगा से बड़ी होगी, तो सबसे हाईएस्ट ही होगी, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर। सो व्हाट इज जीएसएचएस, जीएसएचएस हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर।
So what is the magnitude? Magnitude is omega n square by omega square. So what is magnitude in dV? 40 log omega n minus 40 log omega. 40 log omega n minus 40 log omega. Clear है? So what is the slope? Y बराबर omega n is constant. Y बराबर mx plus c. So slope is here. तो हमारी स्लोप कितनी आ जाएगी? -40 dB पर डिकेड. तो यहाँ पर हमारा GSHS क्या आ जाता है? ओमेगा एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर. मीन्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ओमेगा एन देन वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट दीज टू टर्म. ओनली एच स्क्वायर. हाईएस्ट टर्म इज दिस. ओमेगा अगर ओमेगा एन से बड़ा है तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये आएगी. ओके और लेस देन ओमेगा एन है तो सबसे हाईएस्ट ही आएगी. तो हम एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे. इसका कोई रोल नहीं होता है यहाँ पर जब अपन बोडे प्लॉट ड्रॉ करेंगे. नो रोल फॉर दिस. ओके लेस देन ओमेगा एन एंड ग्रेटर देन ओमेगा एन. ओके सो नाउ what is its Bode plot? So the corner frequency is what? This is omega n. Less than omega n, it is 0 dB. And greater than omega n, it is minus 40 dB per decade. So this is its Bode plot. Less than omega n, 0 dB. Greater than omega n, minus 40 dB per decade. अब if we want to draw the actual plot, अगर हम इसका actual plot draw करें तो magnitude इसका कितना आएगा? अपॉन अंडर रूट ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर. ओमेगा बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 0 पुट करोगे 0, ये 0, ये 0. 2 जीटा ओमेगा ओमेगा एन आएगा यहाँ पर. 2 जीटा ओमेगा ओमेगा एन होल स्क्वायर. 0 0 ओमेगा एन ओमेगा कैंसिल. सो ओमेगा बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड डीबी में कितना आ जाएगा? 20 log 1 दैट इज 0 dB. सो इट स्टार्ट विद 0 dB. At omega barabar omega n, what is the exact magnitude in dB? Exact magnitude in dB is omega n आएगा तो omega n, so these two terms got cancel out. So this terms omega n square 1 upon 20 log 1 upon 2 zeta. 20 log 1 upon 2 zeta. So what I am getting here? I am getting here 20 log 1 upon 2 जीटा. ओके एंड इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 0. एंड 20 log 0 क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी. सो इट्स ग्राफ, इट्स एक्चुअल ग्राफ इज लुक लाइक दिस. सो व्हाट इज द एरर एट ओमेगा एन? हियर एरर एट ओमेगा बराबर ओमेगा एन कितनी एरर होगी? 20 log 1 by 2 जीटा. ओके कितनी एरर होगी? 20 log 1 by 2 जीटा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द एरर एट ओमेगा एन? 20 log 1 by 2. अगर सपोज 1 upon 2 जीटा मेरा क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1. 1 upon 2 जीटा क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1. तो 20 log 1 upon 2 जीटा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. तो ये कैसा जाएगा? कैसा आएगा? ये भी क्या होगा? 20 log 1 upon 2 जीटा. ये कब आ गया? अगर 1 upon 2 जीटा की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 1. और ये कब होगा? अगर 1 upon 2 जीटा की वैल्यू क्या हो? लेस देन 1. ओके सो क्विकली नोटेड डाउन दिस. This is its actual plot when 20 log 1 upon 2 zeta is greater than 0, and this is actual plot green color for if 20 log 1 upon 2 zeta is negative. Okay, so quickly noted down this. Less than omega n, what is 1, and greater than omega n, what is the transfer function? Remember this. This term is very very important. This and here. This GSHS equals to here what? 1. लेस देन ओमेगा एन ये डोमिनेट करेगा तो ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट क्या बचेगा? 1. और ग्रेटर देन ओमेगा एन ये डोमिनेट करेगा तो ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर. यहां से आप डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन हर चीज निकाल सकते हैं. तो क्विकली नोटेड डाउन. ओके so now I am going to tell you quadratic zeros. So these are quadratic pole, and what is quadratic zeros? Quadratic zeros is like this. GSHS बराबर what? S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square upon omega n square. What? GSHS equals to S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square upon omega n square. This is our quadratic zeros. Okay, so for this the corner frequency is again same omega n. First case if omega greater than omega n है, पहले लेस ले लो. तो कौन डोमिनेट करेगा? ये डोमिनेट करेगा. तो GSHS कितना आ जाएगा? इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे. तो ओमेगा एन स्क्वायर बाई ओमेगा एन स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1.
ओके, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1, मैग्नीट्यूड डीबी में कितना हो जाएगा 0 dB. तो व्हाट इज स्लोप हेयर? स्लोप हेयर इज 0 dB पर डिकेड. ओके, क्लियर है? सेम वही प्रोसीजर है जो वहां पर था, वही सेम यहाँ पे, बस यहाँ जीरोस हो गए. Similarly, second, if omega greater than omega n, said what term will dominate? S square. So what GSHS? GSHS is S square by omega n square. What is the magnitude? Omega square by omega n square. What is the magnitude in dB? So this comes out to be 20 log omega square minus 20 log omega n square. So this comes out to be so this comes out to be 40 log omega minus 40 log omega n. So what is the slope here? Slope here is plus 40 dB per decade. Okay, there it was minus 40 dB per decade and here it is plus 40 dB per decade. Kab greater than omega n. So what is its graph? Its graph look like this. So this is minus 40 हो गया, तो हमारी यहाँ स्लोप कितनी है plus 40. So this will go up plus 40 dB per decade. This is at omega n. और अगर एक्चुअल प्लॉट ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा आएगा. और यहाँ पर ओमेगा एन पे वैल्यू कितनी आएगी 20 log 2 zeta. Calculated. So what is g of j omega? I am going to show it here. So what is g of j omega? H of j omega? So minus omega square plus 2 zeta j omega omega n plus omega n square upon omega n square. So this comes out to be 1 minus omega by omega n whole square plus j 2 zeta omega by omega n. If I put omega barabar 0, then what is the magnitude? Magnitude is 1. This only, this both term will become 0. And if omega barabar omega n, then what is the magnitude? 1 minus 1 0, this only 2 zeta will come. So what is magnitude in dB? So magnitude dB is 20 log 2 zeta. And at omega barabar infinity, what is the magnitude? Infinity. So magnitude in dB is infinity dB. There we are getting minus infinity, here we are getting plus infinity, there we are getting 20 log 1 upon 2 zeta, here we are getting 20 log 2 zeta. Okay, so if 20 log 2 zeta is positive, then this is the error. If 20 log 2 zeta is negative, then this is 20 log 2 zeta. अगर 2 zeta की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव. Okay, so quickly note it down. So black color is our exact plot and green color is our Bode plot. Now draw the root locus, Bode plot. Draw the Bode plot of the given transfer function. Suppose GSHS equal to 10 upon S into 1 plus 0.1 S. Write it at 1 plus 0.5 S, 1 plus 0.01 S into S square plus 10S plus 100. So draw its Bode plot quickly. So let's draw this. So in this बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में. बस इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पोल की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी? ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज हियर, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100 and divide it with 100. So what is GSHS? So this comes out to be 0.1 S into 1 plus 0.01 S, and this is its standard form. 100 upon S square plus 10S plus 100. Okay, so how many corner frequency are there? कितनी corner frequency है यहाँ पर? 3 corner frequency है. यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा 10. 10 मेरा 2 पोल की वजह से है, और 2 मेरा किसकी वजह से है? 0 की वजह से है. एंड
ये 100 किसकी वजह से है? एक पोल की वजह से है। इसकी वजह से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन स्क्वायर इज 100. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन? ओमेगा एन इज 10. ओके, सो नाउ फर्स्ट केस इज ओमेगा लाइज बिटवीन 0 से 2. व्हाट इज जीएसएचएस? जीएसएचएस इज 0.1 बाई एस. यहाँ कौन डोमिनेट करेगा? 1 1. यहाँ कौन डोमिनेट करेगा? ये 100 डोमिनेट करेगा, तो 100 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.1 बाई एस. So what is its magnitude? Its magnitude is 0.1 by omega. So what is magnitude in dB? So this should be 20 log 0.1 minus 20 log omega. 20 log 0.1 is minus 20 log omega. So what is the slope? Slope is minus 20 dB per decade. What is the slope? Slope here is minus 20 dB per decade. So let's start and first mark the corner frequency. So what is the corner frequency? First corner frequency is our 2 मेरी 0 की वजह से है, 10 दो पोल की वजह से है. 2 मेरी 0 की वजह से है, 10 मेरा दो पोल की वजह से, और 100 भी पोल की वजह से. क्लियर है? तो 0.1 पे मैग्नीट्यूड मेरा कितना आ जाएगा? 0.1 इफ आई पुट हेयर, तो -20 लॉग 0.1. लॉग 0.1 इज -1. सो -20 प्लस 20 कितना आ गया? 0 dB. तो ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 dB से. एंड स्लोप इज अवर और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और स्लोप कितनी होगी? -20 dB. मीन्स इट शुड गो लाइक दिस. 2 पे मैग्नीट्यूड कितना होगा? अपन निकाल सकते हैं. इसकी स्लोप कितनी है? -20 dB पर डिकेड. 2 पे की निकालनी है, तो m2 बराबर m1 कितना है? 0 -20 log व्हाट? 2 बाई 0.1. तो -20 log 20. दिस इज अवर मैग्नीट्यूड. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -20 log 20? टेल मी क्विकली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -20 log 20? log 2 कितना होता है? 0.3. log 10 कितना होता है? 1.3 इंटू -20 इंटू 1.3 कितना आ जाएगा? -26 dB. 2 पे 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. फिर से दो पोल आ गए, तो स्लोप कितनी हो जाएगी? स्लोप कितनी हो जाएगी मेरी? -40 dB पर डिकेड. क्लियर है? एंड देन वन एक और पोल आ गया, तो इसके बाद स्लोप कितनी हो जाएगी? -60 dB पर decade. Okay, so this is our Bode magnitude plot. ओके, सो क्विकली ड्रॉ इट. बस इसमें क्या ध्यान देना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बने. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बने तभी आएगा. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. सो क्विकली नोट इट डाउन. हैव यू ड्रॉन इट? Okay, so here also you have to make this into the standard form, and this you have to make in the, this is not factorizable because its zeta should be less than 1. zeta less than 1 तो क्या हो जाएगा? ये अंडरडैम्प्ड सिस्टम, रूट्स क्या आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स. तो अपन इसको क्या करेंगे? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे. एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 25 डिवाइडेड बाई 25. 25 से डिवाइड किया है तो 25 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. इसकी बनाएंगे तो 100 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 100. तो इसको 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. और यहाँ क्या बचा? s इंटू 1 प्लस 0.5s. So what I am getting? 100 got cancel out. So in the numerator I am getting 25 upon s into 1 plus 0.5s into plus 25 upon 25, sorry, plus 5s plus 25 upon 25 into 100 upon s square plus 10s plus 100. What is the corner frequency? Corner frequency here is 5, here it is 10, here it is 2. Okay, so there are 3 corner frequency. What? 2 and then 5 and then 10. 2 is because of pole, 5 is because of 0, and 10 is again because of दो pole. 5 किसकी वजह से? दो 0 से. So for, let me take the first case. Omega lies between 0 से 2. So what is GSHS? GSHS क्या होगा? बताओ फटाफट.
कौन डोमिनेट करेगा? अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है मेरी 2 से कम, 2 से कम है तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 है तो 1, यहाँ इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 5 है तो 5 से कम पे कौन डोमिनेट करता है? ये 25, 25/25, ये दोनों नेगलेक्ट कर दोगे तो कितना आएगा? 1। ये 100/100 क्या आएगा? 1। ये एस स्क्वायर कब डोमिनेट करेगा? जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 10 से ज्यादा, तो 100 गॉट कैंसिल आउट, सो कितना बचेगा? 1 1 1 25/s, so this should be our 25/s. So what is magnitude here? 25 by omega. What is magnitude in dB? 20 log 25 minus 20 log omega. So let's start the Bode plot of this. So here, what is the corner frequency? 2, and then 2 0, and then 2 pole. So if at point 1, so what is point 1? 20 plus 20 log 25. तो कहाँ से start होगा? 20 plus 20 log. Calculate the value of 25 and put it here. So this should be 20 plus 20 log 25. और ये क्या है? क्या आ जाएगा? -20 dB per decade. Find the value of the gain at 2. 2 पे आप इजिली निकाल लोगे, ठीक है। वही m2 बराबर m1 प्लस स्लोप इंटू लॉग ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? m2 आ जाएगा। इसके बाद पोल आ गया तो -20 में -20 जोड़ो तो अगेन ये क्या हो जाएगा? -40 dB हो जाएगा, तो यहाँ से ये ऐसा जाएगा -40 dB पर decade. So this frequency is our 5. So for here we have to find the magnitude at 5. जो भी मैग्नीट्यूड आए 5 पे वो आप निकाल सकते हो उसी फॉर्मूले से, m2 बराबर m1 प्लस, क्योंकि आपको 2 पे पता होगा, 2 पे आप इससे निकालोगे फिर आपका 5 पे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गए? 2 जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए तो 2 जीरो की वजह से कितना होगा? +40, तो -40 में +40 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 0 dB पर, एंड देन अगेन -40 dB पर decade. So this is its Bode plot. You have to find the value of m2 and m3. Quickly find out. You can find out from there. Okay, so to note it down quickly. Same process is there, but the problem is you have to first make it into the standard form. Okay, so note it down quickly. Okay, so now I am going to teach you what? Phase plot. So till now you have studied the magnitude plot. So now I am going to teach you the phase plot. Okay, so next I'm going to teach you the phase plot. So phase plot, so let's just take GSHS equal to 1/1 plus ST. Okay, so what is G of j omega, H of j omega? 1/1 plus j omega t. What is its angle? Its angle is -tan inverse omega t. ओमेगा बराबर 0 पे एंगल कितना होगा? 5 बराबर 0 डिग्री। ओमेगा बराबर 1/t पे एंगल कितना होगा? 5 बराबर -45 डिग्री। व्हाट इज द एंगल एट इन्फिनिटी? 5 बराबर -90 डिग्री। So its graph look like this. If I vary, actual graph look like this. At infinity, its angle is -90 degree. At 1/t, its angle is -45 degree. 0 degree. Okay, so this is its 5 versus omega plot. Okay, so now we have to make the Bode phase plot. So Bode plot, I have already told you that Bode plot is the asymptotic plot. Bode plot we draw on the semi-log paper. In the semi-log paper, the x-axis is basically the log axis. So we have to make the phase plot in the straight line, because Bode plot is the asymptotic plot and asymptotic plot is the straight line. So we have to convert it into the straight line. So how you are going to convert it into the straight line? So here we are taking few assumptions, just like in the Bode magnitude plot. Same here we are also assuming here the few assumptions. What are the assumptions? I am going to tell you. So what is G of j omega, H of j omega is 1/1 plus j omega t. What is phi? Its corner frequency of this is omega c equals to 1/t. Its corner frequency कितनी होगी इसकी? 1/t. Okay, clear है सबका? ठीक है. So what I am assuming here, first case I am assuming
इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, 10 टाइम्स कम कर दो। 10 टाइम्स कम करो तो ये कितना आएगा, 0.1/t। हमने कितना घटा दिया, 10 टाइम्स कम कर दिया। तो ओमेगा बराबर 0 पे मेरा फाई कितना है, 0 डिग्री। ओमेगा बराबर 0.1/t पे मेरा फाई कितना आएगा, -10 इनवर्स 0.1। -10 इनवर्स 0.1 कितना आएगा, क्विकली बताओ। -10 इनवर्स 0.1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, क्विकली बताओ, बोलो। -5.71 degree. Okay, so this -5.7 degree we are assuming here it is 0 degree. तो 0 पे भी 0 डिग्री, 0.1/t पे भी हमने इसको क्या मान लिया, 0 डिग्री। तो हमारा कोई भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो स्लोप शुड बी 0 डिग्री पर डिकेड। This is okay. So slope should be 0 degree per decade because I am assuming here -5.71 is approximately 0. So angle is not changing. So slope is 0 degree. Now what omega lies between 0.1/t से लेके what 10/t। 0.1/t से लेके 10 टाइम्स कम कर दिया और 10 टाइम्स ज्यादा कर दिया। हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उसको 10 टाइम्स कम और 10 टाइम्स ज्यादा। तो अगर हम 0.1/t पे फाई निकाल रहे हैं तो इट शुड बी -5.71 डिग्री, और ये हमने कितना मान लिया, 0 डिग्री। ओमेगा बराबर 1/t पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -45 डिग्री। 10/t पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 बराबर -10 इनवर्स 10। सो दिस शुड बी -84.7 डिग्री, 84.3 डिग्री। So this is approximately we are taking -90 degree. Okay, so this I am taking here it as -90 डिग्री। हमने इस एंगल को क्या मान लिया, -90। तो ये देखो ये क्या है, अगर हम इसको डिवाइड करोगे तो ω2/ω1 कितना आएगा, 10। तो हाउ मच एंगल इज चेंजिंग, 0 से -40 डिग्री हो गया, तो कितना चेंज हो गया, -45 डिग्री पर डिकेड। एंड अगेन 1/t से 10/t, सो दिस इज ऑल्सो अ डिकेड। सो हेयर ऑल्सो -45 से -90 हो गया, तो कितना एंगल चेंज हो रहा है, -45 डिग्री पर डिकेड। एंड लास्ट ओमेगा ग्रेटर देन 10/t। ओमेगा ग्रेटर देन 10/t के लिए हमने एंगल अपना कितना मान लिया, फिक्स कर लिया। कितना, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके एंगल कितना होगा, -90 डिग्री। कांस्टेंट हो गया तो स्लोप कितनी हो गई, 0 डिग्री पर डिकेड। मतलब जो इनफाइनाइट पे होने वाला था वो हमने कहां करा दिया, 10/t पे। Okay, so what is its Bode phase plot? So what is our corner frequency? Corner frequency is due to pole 1/t। 1/t को 10 times कम कर दो, 0.1/t। 10 times बढ़ा दो, 10/t। So here it is 0. Actually the angle at 0.1/t is something 5 point something degree, -5 point something degree, but here we are assuming here it is 0 degree. So error at 0.1/t is -10 inverse 0.1. So it should be -5 point what, -5.7 degree. Okay, so this is the error here. And 1.1/t से 10/t के लिए हमारी स्लोप कितनी हो गई, and at 10/t what is the angle, angle is -90 डिग्री। 1/t पे एंगल कितना है, -45 डिग्री। एक्चुअल में भी 1/t पे एंगल कितना है, -45 डिग्री। सो एरर कितनी हो गई, 0। 10/t के बाद सारी फ्रीक्वेंसी पे एंगल कितना हो गया, 90। तो दिस इज अवर क्या, बोडे फेज प्लॉट। तो वहां पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम और ज्यादा होता था, यहां पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से 10 टाइम्स कम और 10 टाइम्स ज्यादा। तो एक पोल की वजह से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से 10 टाइम्स कम और 10 टाइम्स ज्यादा के लिए स्लोप कितनी होती है, -45 डिग्री पर डिकेड। ओके, सो क्विकली नोटेड डाउन। ओके, सो नेक्स्ट ड्रॉ दिस। तो एक पोल की वजह से, एक पोल कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यदि पोल की वजह से है उससे 10 टाइम्स कम और 10 टाइम्स ज्यादा में स्लोप कितनी रहती है, -45 डिग्री पर डिकेड। ओके, नेक्स्ट कंसीडर द जीरो। इफ सपोज GSHS इक्वल टू 1 + ST, सो व्हाट इज G ऑफ J ओमेगा, H ऑफ J ओमेगा, कितना आ जाएगा, 1 + J ओमेगा T। सो व्हाट इज फाई, फाई इज 10 इनवर्स ओमेगा T। सो ओमेगा वर्सेस फाई, 0 पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 1/t पे 45 डिग्री
और इन्फिनिटी पे कितना 90 डिग्री। सो इट्स एक्चुअल प्लॉट लुक लाइक दिस। इन्फिनिटी पे जाके कितना हो गया 90 डिग्री, 1/t पे कितना हो गया 45 डिग्री एंड 0 पे 0 डिग्री। This is its actual plot, but we have to convert it into the Bode-Phase plot. In Bode-Phase plot, we have to make this into the straight line. To make the straight line, to make this curve into the straight line, we have to take some assumptions. What assumptions? इसकी corner frequency कितनी है 1/t। तो फर्स्ट केस लेंगे 0 से बड़ी और 0.1/t से छोटी। तो 0 पे एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री। 0.1/t पे एंगल कितना होगा, 5 बराबर tan इनवर्स 0.1, और इसको हम कितना मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री। ये भी कितना आएगा 5.71 डिग्री। एरर चाहे आप 0.1t पे निकालो चाहे 10/t पे निकालो, दोनों पे सेम होती है 5.7। ओके, नेक्स्ट केस ओमेगा लाइस बिटवीन 0.1/t से लेके 10/t। तो 0.1/t पे मेरा एंगल अपन ने tan इनवर्स 0.1 था जिसको कितना मान लिया 0 डिग्री। 1/t पे मेरा फेस कितना हो गया 45 डिग्री, और 10/t पे मेरा फेस कितना हो गया tan इनवर्स 10। सो दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट 90 डिग्री एज्यूम कर लिया। यहाँ पर हमने इसको कितना एज्यूम कर लिया 0 डिग्री। तो ये एक डिकेड है, एक डिकेड में कितना चेंज हो रहा है 45 डिग्री, फिर एक डिकेड में कितना चेंज हो रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ स्लोप कितनी हो गई प्लस 45 डिग्री पर डिकेड। और ग्रेटर देन 10/t के लिए हमने फाई कांस्टेंट कर दिया कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो मैक्सिमम एरर कहां पर होगी 10/t पे, कितना 5 पर, क्योंकि उसकी 10/t के ऊपर बढ़ाओगे तो एंगल हमेशा बढ़ेगा, एंगल हमेशा बढ़ेगा तो एरर क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सो दिस इज अवर 0 1/t 10 टाइम्स कम कर दो, 0.1/t 10 टाइम्स बढ़ा दो 10/t। सो इन दिस रीजन द एंगल इज 0 and in this region the slope is plus 45 degree per decade। 1/t angle is 45 degree, 10/t the angle is 90 degree, and after 10/t the angle is constant what 90 degree। और एक्चुअल प्लॉट में एंगल इन्फिनिटी पे जाके 90 होता है, जो यहाँ पर कहां पर मान लिया 10/t। तो मैक्सिमम एरर कहां पर होती है 10/t पे और 0.1/t पे, दोनों पे एरर क्या होती है सेम। सिमिलरली फॉर द पोल ऑल्सो द एरर इज मैक्सिमम एट 0.1/t एंड 10/t, दैट इज 5.71 डिग्री। ओके, सो नोटेड डाउन दिस ऑल्सो from here। Okay, next I am going to give you a question, and here one more formula. Similarly here it is slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1। so at omega बराबर omega 1 face is phi1, at omega बराबर omega 2 face is phi2। so what is slope is phi2 minus phi1 upon, in the x-axis what it is log omega 2 minus log omega 1, because we are drawing on the semi-log paper। so what is phi2 here same is phi1 plus slope into log, same formula omega 2 by omega 1। there we are getting m2 बराबर m1 plus slope into log omega 2 by omega 1। here we are getting phi2 बराबर phi1 plus slope into log omega 2 by omega 1। okay, so quickly note it down। okay, so write down a problem। so GSHS is suppose 1 plus s upon 1 plus 0.1 s। so how many corner frequency are there, how to draw the phase plot। I am going Bode plot आप easily draw कर लोगे, I am going to tell you the phase plot। so there is one corner frequency is 1 is because of this 0 and 10 is because of this pole। अब इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का इन्फ्लुएंस कहां से कहां तक रहेगा, इसका 10 टाइम्स कम करो 0.1 और 10 टाइम्स बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 10। तो इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वजह से इस रीजन में स्लोप कितनी होगी प्लस 45 डिग्री पर डिकेड। अभी बताया एक पोल की वजह से स्लोप कितनी होती है प्लस 45 डिग्री पर डिकेड बिटवीन 0.1 एंड 10। ओके, नाउ दिस इज अवर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू पोल का 10 टाइम्स कम करो तो ये क्या आएगा 1, और 10 टाइम्स बढ़ा दो तो क्या आएगा 100। तो इस पोल की वजह से स्लोप किस रेंज में होगी, इस रेंज में होगी, और स्लोप होगी कितनी -45 डिग्री पर डिकेड।
तो हमें यहां से पता चल गया .1 से 1 में स्लोप टोटल कितनी है +45, 1 से 10 में कितनी है 45 - 45, टोटल कितनी हो गई 0 डिग्री पर डिकेड, और 10 से 100 में कितनी है -45 डिग्री पर डिकेड, और 100 के बाद 0 डिग्री पर डिकेड, और .1 से पहले 0 डिग्री पर डिकेड। तो हमारा यहाँ पर फेस प्लॉट कैसे ड्रॉ होगा, mark down all the frequency 0.1 and then 1 and then 10 and then 100। तो 0.1 से पहले स्लोप क्या है 0 डिग्री पर डिकेड, कोई ओरिजिन पे पोल भी नहीं है, क्योंकि अगर 1/s हो जाता है, एस का एंगल हमेशा कितना होता है -90 डिग्री हर फ्रीक्वेंसी पे। तो स्टार्टिंग एंगल कितना हो गया यहाँ पर, स्टार्टिंग एंगल हमारा कितना हो गया 0। 0.1 से 1 में स्लोप कितनी है +45, +45 का मतलब ये जाएगा कितना +45 डिग्री पर डिकेड। अब हमें 1 पे एंगल निकालना है, तो 1 पे एंगल कितना होगा 5 बराबर 5 0, स्लोप कितनी है +45 log 1/0.1, so this comes out to be 45 degree, so at 1 angle is 45 degree। 1 से 10 के बीच में एंगल कितना होगा 1 से 10 के बीच में +45 and -45, +45 and -45, so this should be 0 degree means constant। 10 से 100 के बीच में कितना है -45, तो हमें यहाँ पर स्लोप पता है कितनी -45 डिग्री पर डिकेड। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल एट 100, सो 100 पे एंगल हमारा कितना होगा, 10 पे एंगल कितना है 45 माइनस स्लोप कितनी है 45 डिग्री, -45 log ω2/10, सो दिस कम्स आउट टू बी 0 डिग्री। तो यहाँ कितना आ गया ये 0 डिग्री, और 100 के बाद 0 डिग्री स्लोप हो गई, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। So this is our phase plot, this is our Bode phase plot। in this एक पोल का इन्फ्लुएंस हमेशा 10 टाइम्स कम और 10 टाइम्स ज्यादा, और हर बार एंगल किस पे लगाते जाओ 5 बराबर 5 प्लस स्लोप इनटू log ω2/ω1। ओके, सो क्विकली नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर दिस, GSHS इक्वल्स टू 10/s into 1 plus s upon 1 plus 0.1s into 1 plus 0.01s। So what is the corner frequency here? First corner frequency is our 1 due to 0, second is our due to this pole, and third one is our due to this pole। अगर सर हम इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसको 10 टाइम्स कम करो तो कितना आएगा 0.1, 10 टाइम्स बढ़ा दो तो कितना आएगा 10। इस जीरो की वजह से इस रीजन में स्लोप कितनी होगी +45 डिग्री पर डिकेड। ओके, क्लियर है। नाउ अगर हम इस पोल की बात करें, इस पोल की फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 को 10 टाइम्स कम करो तो 1, 10 टाइम्स बढ़ा दो तो 100। तो इस रीजन में स्लोप इस पोल की वजह से कितनी होगी -45 डिग्री पर डिकेड। 100 को 10 टाइम्स कम करो, 100 को 10 टाइम्स कम करो तो कितना आएगा 10, और 100 को 10 टाइम्स बढ़ा दो तो 1000। तो इस रीजन में इस पोल की वजह से कितना होगा, मतलब हर पोल का इन्फ्लुएंस कहां से कहां तक होगा 10 टाइम्स कम और 10 टाइम्स ज्यादा। एवरी पोल हैज इन्फ्लुएंस by decreasing the corner frequency 10 times less and 10 times more। ओके, सो क्लियर है ये, इन सब की अपन को फ्रीक्वेंसी। और 100 के बाद मेरी स्लोप कितनी हो जाएगी 0 डिग्री पर डिकेड, और 0.1 से पहले भी कितना होगा 0.1 से पहले भी कितना होगा 0 डिग्री पर डिकेड। ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट I am going to tell you how to draw the phase plot। So write down all the frequency 0.1, here it is 1, and there it is 10, and then 100, and then 1000। Before 0.1, before 0.1, so here one pole is at origin, so if I write g of j omega, h of j omega, so this becomes 10/j omega, something something आएगा। तो j omega का एंगल ऑलवेज क्या होगा -90 होगा कि नहीं, बोलो। अगर ये s ना होता तो एंगल कितना होता 0.1 से पहले 0 डिग्री, लेकिन ये s आ गया तो इसकी वजह से एंगल कितना होगा -90 डिग्री। तो 0.1 से पहले एंगल हमारा स्टार्ट किससे होगा कांस्टेंट, कितना -90 डिग्री। 0.1 से 1 के बीच में स्लोप कितनी है +45 डिग्री पर डिकेड।
So here it is plus 45 degree per decade. So calculate angle at 1. आप कहां से भाई phi 2 बराबर phi 1 plus slope into log omega 2 by omega 1. पॉइंट 1 पे पता है, 1 पे निकालना है, कितना आ जाएगा माइनस 45 डिग्री. अब 1 से 10 में देखो, 1 से 10 में देखो, प्लस 45 एंड माइनस 45 क्या हो गया 0 डिग्री पर डिकेड. नेक्स्ट बिटवीन 10 एंड 100, 10 एंड 100 के बीच में कितना है माइनस 45, 10 एंड 100, 10 एंड 100 के बीच में माइनस 45, माइनस 45 कितना माइनस 90 डिग्री पर डिकेड. यहां पर कितना है माइनस 90 डिग्री पर डिकेड. तो यहां से भी एंगल निकाल सकते हो, फाई 2 बराबर फाई 1 प्लस स्लोप इंटू लॉग ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1. 10 पे एंगल पता है माइनस 45, 100 पे निकालना है, स्लोप कितनी है माइनस 90 डिग्री पर डिकेड. सो हेयर दिस एंगल कम्स आउट टू बी माइनस 135 degree. So next is our 100 to 1000, 100 to 1000, again it is minus 45. तो वापस से क्या हो जाएगा माइनस 45 डिग्री पर डिकेड. तो यहाँ कितना आ जाएगा ये एंगल माइनस 180 डिग्री. और 1000 के बाद क्या हो जाएगा, 1000 के बाद क्या हो जाएगा, कोई भी स्लोप नहीं है, तो यहां से ये एंगल क्या हो जाएगा कांस्टेंट. सो दिस इज अवर फेस प्लॉट. वही सिमिलर है, बस यहाँ पर इफेक्ट क्या होता है, किसी भी जीरो की वजह से उससे 10 टाइम्स कम और 10 टाइम्स ज्यादा, पोल की वजह से उससे 10 टाइम्स कम और 10 टाइम्स ज्यादा. अगर ऑरिजिन पे पोल है तो स्टार्टिंग एंगल कितना हो जाएगा माइनस 90. ऑरिजिन पे यदि जीरो है तो स्टार्टिंग एंगल कितना हो जाएगा प्लस 90. क्योंकि ऑरिजिन पे जीरो है तो उसका एंगल हमेशा कितना होगा, उसका एंगल हमेशा कितना होगा प्लस 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा. बोलो, अगर ऑरिजिन पे मेरा जीरो है तो उसका एंगल हमेशा कितना होगा प्लस 90. एस का एंगल, जी ओमेगा का एंगल हमेशा प्लस 90. और 1 अपॉन एस का दो पोल ऑरिजिन पे है तो कितना हो जाएगा माइनस 180. तीन पोल है तो माइनस 270 से स्टार्ट होगा. सो फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू गेट द स्टार्टिंग एंगल. अगर कोई भी पोल और जीरो ऑरिजिन पे नहीं है तो जीरो से स्टार्ट होगा, बाकी आप यहां से स्लोप पता कर लोगे. और फाई 2 बराबर फाई 1 प्लस स्लोप इंटू लॉग ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1. क्लियर है. सो नोट इट डाउन क्विकली. So write down a problem, do it at your home. Okay. So write down a problem, do it at your home. So the problem is draw its phase plot. Tan s square 1 plus 0.5 s 1 plus 0.1 s 1 plus 0.01 s. So okay, so बस एक हिंट दे देता हूं, ये एस स्क्वायर है, ऑरिजिन पे दो जीरो है, तो स्टार्टिंग एंगल शुड बी डेफिनेटली प्लस 180 डिग्री. एक पोल एक जीरो की वजह से कितना होता है प्लस 90, दो जीरो की वजह से कितना हो जाएगा प्लस 180. तो स्टार्ट कहां से होगा 180 से. बाकी वही है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मार्क कर लो. हिंट दे देता हूं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 2, इसका कितना है 10, 2 एंड देन 10 एंड देन 100. 2 को 10 टाइम्स कम करोगे तो कितना आएगा 0.2, 10 टाइम्स बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा 20. तो इस रीजन में इस जीरो की वजह से स्लोप कितनी होगी प्लस 45 डिग्री पर डिकेड. ओके, 10 का 10 टाइम्स कम करोगे तो कितना आएगा 1, और 10 का 10 टाइम्स बढ़ा दोगे 100. तो इस रीजन में 1 से लेके 100 तक इस पोल की वजह से क्या होगा माइनस 45 डिग्री पर डिकेड. 100 का 10 टाइम्स कम करोगे तो 10 टाइम्स बढ़ा दोगे तो 1000. इस रीजन में इस पोल की वजह से एंगल कितना आएगा यहां से 10 से लेके 1000 तक माइनस 45 डिग्री पर डिकेड. अब स्लोप क्या होगी 0.2 से 1 के बीच में प्लस 45, 1 से 2 के बीच में प्लस 45 माइनस 45 0 डिग्री, 2 से 10 के बीच में प्लस 45 माइनस 45 0 डिग्री, 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में यहाँ पर कितना होगा प्लस 45 माइनस 45 माइनस 40. So this should be minus 45. 20 से 100 के बीच में माइनस 45 माइनस 45 माइनस 90. 100 से 1000 के बीच में माइनस 45, और 1000 के बाद क्या हो जाएगा 0 डिग्री पर डिकेड. ओके, सो फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू गेट द फेस प्लॉट. सो ट्राई इट एट योर होम. ओके, बहुत अब कुछ बचा ही नहीं है, बस डायरेक्टली आपको बनाना है. और स्टार्टिंग एंगल अगर 0.2 यहाँ पर है तो 0.2 से एंगल पहले कितना होगा हमेशा प्लस 180 डिग्री, बिकॉज 2 पोल इज एट 2 0 इज एट ऑरिजिन. बिकॉज 2 0 इज एट ऑरिजिन, हमारे दो जीरो कहाँ है ऑरिजिन पे, और एक जीरो की वजह से होता है प्लस 90, दो जीरो की वजह से होता है प्लस 180. सो इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट. इसके बाद जो भी स्लोप है कितनी है यहाँ 0.2 से 1 प्लस 45. फिर एंगल निकालते जाओ, फ्रीक्वेंसी पुट करते जाओ, वही फॉर्मूला है. तो आपका ये क्या हो जाएगा फेस प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा. Okay, so note it down, try this question at your home. Okay, so now I'm going to conclude the class.
Okay, so today you have studied the Bode plot. You have also learned how to draw the Bode phase plot. Okay, तो Bode phase plot आपको draw करने आ गया, Bode magnitude plot draw करना आ गया. Now try as much as question as much you can. ठीक है, solve all the previous year question, solve from any book. Okay, and in the next class ask me doubt if there is any doubt. Okay, so in the next class I am going to start our next topic, that is the polar plot, and then Nyquist plot, and then state variable analysis. Okay, so thank you very much.